ਅਰਨੀਮਾ ਚੜੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਚੜ੍ਹਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ ਆ ਮਾਊਂਟੇਨਿੰਗ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਏਮ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਥਲੀਟ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਆ ਵੀ ਮਾਊਂਟੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕੋਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਰੁਣਿਮਾ ਜਦੋਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਪਲੇਅਰ ਲੀਆ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਅੰਗਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਹੀਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਅਨੁਪਮਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਾਰ ਲਈ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ 6 ਪੈਕ ਬਣਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 99% ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਔਕੜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਸੁੱਖ 25% ਤੇ ਦੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 75% ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮਾਸੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਹਿੰਮਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਹੌਸਲਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੇਮ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਸੁੱਟਤਾ ਪਰ ਚੈਨ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲੇ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਪਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮਿਹਨਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੂਗਾ। ਵਾਰੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਲ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਮਾਂ ਪਿਓ 3 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕਦੇ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਿਓ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬਾਜੀ ਦੀ ਚੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਧੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਰਕੇ ਪਲੇ ਕਰ लोगों को कि इतनी देर किसी को बैठ के सुनना सबसे बड़ी बात ये होती है क्योंकि जब वहाँ पे हम बैठ के किसी को सुनते हैं उतना पेशेंस रखना पड़ता है ये मुझे लगता है। और एक्चुअली मैं 26 साल की हूँ। 2011 में चलती ट्रेन से मुझे कुछ बदमाशों ने मैं वॉलीबॉल चैम्पियन भी रह चुकी हूँ 2011 में चलती ट्रेन से मुझे बदमाशों ने एक गोल्ड चेन पहनी थी चलती ट्रेन से मुझे उठा के बाहर फेंक दिया था। लखनऊ से दिल्ली आ रही थी मैं कंपार्टमेंट में बहुत सारे जनरल कंपार्टमेंट था बहुत सारे लोग थे किसी ने मना नहीं किया। एक प्लेयर का जो स्पिरिट होता है वो अपने आप जब कोई छीनने की कोशिश करता कुछ भी वो देता नहीं है तो मेरे में भी था। मैंने मना किया और उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से वो 4-5 तो उन्होंने बाहर फेंका। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और मैं उस ट्रेन में टकराई फिर नीचे गिरी। दोनों ट्रेनें निकल गईं। कुछ देर बाद मैंने हाथ को ऐसे रख के उठने की कोशिश किया तो देखा कि मेरा पैर कट चुका था। थाई को उठा के इधर मेरा पैर ऐसे जीन्स में लटका हुआ था ब्लड फोर्सफुली निकल रहा। दूसरे पैर की हड्डियाँ टूट के बाहर निकल चुकी थी। पूरी रात में चिल्लाती रही ट्रैक पे छोटे छोटे पत्थर होते ऐसे चिल्लाती रही कि कोई बचा ले कोई नहीं आया बचाने। और जब पूरी रात चिल्लाते इतना कि मुझे दिखाई भी देना बंद हो गया। जब ट्रेन आता था तो वाइब्रेट होता था। इतना ही नहीं फ्री का इन्विटेशन भी लोगों को मिल गया था। कुछ लोगों को ट्रैक पे आपने ट्रेन के ट्रैक पे छोटे छोटे चूहे देखे होंगे। मेरे कटे हुए पैर पे आग के मेरे पैर कुतर रहे थे। मेरा ब्रेन कॉन्शियस मेरा पूरा काम कर रहा था मेरे लेकिन बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं था। पूरे पल में वही चीज़ें सोच कि कैसे मैं अपने आप को कैसे बचा पाऊँ। लेकिन करीब पूरी रात ऐसे बीता। सुबह गांव वालों ने मुझे बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यूपी में है वहाँ पे हुआ था ये। सुबह गांव वालों ने मुझे उठाया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाके रखा तो फार्मासिस्ट डॉक्टर
सीएम जितने लोग थे आपस में बातें कर रहे हैं, हमारे पास तो एनेस्थीसिया नहीं है, ब्लड नहीं है, इसका इलाज शुरू करें तो हम कैसे करें। मुझे भी नहीं दिखाई तो नहीं, लेकिन मेरा सुनाई दे रहा था सब कुछ वहाँ पे। कहाँ से हिम्मत आई मुझ में, मुझे भी नहीं पता। मैंने बोला वहाँ पे कि सर जब मेरा पूरा पैर कटा, तब मैंने इतनी देर रेलवे ट्रैक पे थी, मैं उस चीज़ को बर्दाश्त किया, तो अभी तो आप मेरे अच्छे के लिए मेरे पैर काटेंगे। शायद आपको यकीन नहीं होगा, या फिर कभी आप लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी, कोई डॉक्टर या फार्मासिस्ट अपना ब्लड दे के किसी पेशेंट को बचाया। मेरी इस बात को सुनने के बाद वहाँ के डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों ने एक एक यूनिट ब्लड दिया और मेरे पैर को बिना एनेस्थीसिया अलग कर दिया गया। आज भी मैं उस दर्द को महसूस करती हूँ, जब भी मैं जब बोलती हूँ तब मैं वो चीज़ें महसूस करती हूँ। उसके बाद जब बात मीडिया में आई, लोगों को पता चला कि रिमा नेशनल प्लेयर है, केजीएमसी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में एडमिट करे, लखनऊ से फिर स्पोर्ट मिनिस्टर एम्स ट्रॉमा सेंटर दिल्ली। तब तक सब ठीक ठाक चल रहा था, प्लेयर होने की वजह से अच्छा ट्रीटमेंट मिलना शुरू हुआ। करीब 4 महीने में एम्स में रही। एम्स में रहने के बाद जब मैं थोड़ा ठीक हुई, करीब 25 दिन बाद जब ठीक हुई, न्यूज़पेपर में गोल गोल लिख के आ रहा कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, अरुणिमा ट्रेन से कूद गई। उसका खंडन किया घर वालों ने, फिर बोला कि अरुणिमा सुसाइड करने गई थी। जिस लड़की का शरीर का एक अंग कट चुका, पूरी जिंदगी का पता नहीं कि व्हील चेयर है, बैसाखी या पता, यहाँ तक कि मेरे स्पाइन में 3 फ्रैक्चर था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं बेड से उठ भी पाऊंगी कि नहीं। अंदाजा लगाया जा सकता, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी दिलो दिमाग पे क्या चल रहा होगा, उस परिवार की क्या स्थिति रही होगी जब जिस परिवार की एक यंग एज लड़की का इस तरीके का सिचुएशन हुआ हो। फिर भी कहते हैं कि जहाँ चाह होती वहाँ राह मिली जाती है। एम्स के हॉस्पिटल के बेड पे मैंने डिसाइड किया, क्योंकि अपनी बातें हम चिल्ला के करें, उस सिस्टम की इतनी हाई लेवल की बातें हो रही थी कि हम एक मध्यम वर्गीय फैमिली से थे, हम अपनी बातें चिल्ला के कह रहे थे, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन कहते हैं मैंने अपने दिल दिमाग अंतरात्मा से ये चीज़ सोच लिया कि ठीक है, आज आपका दिन है, जितना चाहो बोलो, एक दिन तो मेरा दिन आने वाला, मैं प्रूफ कर दूंगी कि मैं क्या हूँ, मैं क्या थी, ये मैं प्रूफ कर दूंगी। हॉस्पिटल के बेड पे डिसाइड किया वॉलीबॉल नहीं, लाइफ का सबसे टफ गेम करना, तब मैंने माउंटेनिंग चुना। जब मैंने माउंटेनिंग कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। जब मैंने माउंटेनिंग की बात सोची और लोगों के सामने, सबसे बड़ी चीज़ थी सही गाइडेंस में ट्रेनिंग लेना, दूसरा स्पॉन्सरशिप। इतना बड़ा एक साथ तो मैंने 40 से 50 लाख मैंने वाकई में कभी नहीं देखे थे पहले। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी वो इकट्ठा कर पाना। जब मैंने लोगों के सामने रखा कि मैं माउंटेनिंग करना चाहती हूँ, एवरेस्ट के लिए मुझे ट्राई करना है, हर किसी ने मुझे बोला कि क्या है, पागल हो चुकी हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका, तुम कभी नहीं कर सकती माउंटेनिंग। एक पैर आर्टिफिशियल है, दूसरे में रॉड है, और तुम्हारा दिमाग खराब है, स्पाइन में भी फ्रैक्चर है, तुम पागल होगी, चुपचाप कोई नौकरी करो, जीवन यापन करो। क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता, लोग फिजिकल देखते, पैरों को मेरी अंतरात्मा में क्या चल रहा था वो तो किसी को पता ही नहीं था। मुझे लगता है कि आज यहाँ पे मैं भी सुबह से देख रही हूँ, इतने अच्छी चीजें मैंने सीखी यहाँ पे। बहुत बड़े बड़े स्पीकर को शायद आप लोगों ने भी आज मैं भी आपको यहाँ पे कि चाहे जितना मोटिवेट करूँ, चाहे जितना चीजें मैं बताऊँ, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता, आप खुद। जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई, आपको कोई नहीं रोक सकता उस लक्ष्य को पाने में। ये मैं किताब से बातें नहीं बोल रही हूँ, ये मैं एक एक पल मैंने वो, ये मैं कोई भी किताब की बातें नहीं, एक एक पल आज जो मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं बता रही हूँ सिर्फ आप। उसके बाद किसी तरीके से मैनेज किया मैंने। भाई साहब, मेरा परिवार मेरा बैकबोन था। परिवार ने मुझे, भाई साहब ने मुझे कहा कि मैडम बछेंद्री पाल जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट समिट किया, उनसे मिलते हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। हॉस्पिटल से निकलने के बाद मेरे राइट लेग में स्टिचेस लगी थी। मैंने डायरेक्टली घर जाने की बजाय, जब लोग ये सोचते हैं कि मुझे अपना जीवन यापन कैसे करना है, जब लोग ये सोचते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी का, मेरे दिमाग में सिर्फ 2 चीज़ें चल रही थी, मुझे इनका जवाब कैसे देना है, एवरेस्ट समिट कैसे करना है। और तुरंत गए बछेंद्री मैम के पास। जब मिले, मैम ने फर्स्ट टाइम जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा, अरुणिमा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला, अरुणिमा, तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा तो तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतह कर लिया, अब तो सिर्फ लोगों के लिए। मेरे परिवार को छोड़ के बाहर की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया था कि हाँ अरुणिमा, तुम कर सकती हो। मेरे लिए वही बहुत बड़ी चीज़ थी। प्लानिंग भी कर ली, मैम भी मिल गई, सब हो गया। लेकिन जब उतरते हैं फील्ड में तब पता चलता कि हम क्या हैं। रोड हेड से मैं पहुंच गई। मैडम ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे कहने, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा अरुणिमा, प्रूफ करो कि कर सकती हो। मैंने कहा बस एक मौका चाहिए मुझे।
वाकई में जब मैं माउंटेन में पहुंची, रोड हेड से बेस कैंप लोगों को 2 मिनट लगता था, मुझे 3-3 घंटे लगते थे, क्योंकि मेरे राइट लेग की हड्डियां भी नहीं जुड़ी थी। लेफ्ट मेरा आर्टिफिशियल लग चुका था, लेकिन स्टंप एकदम रेड, उसका मतलब घाव एकदम नए थे। मैं अगर पैर रखती थी तो मेरे पैर से जोर से अगर दबा देती थी तो पैर से मेरे ब्लड आने लगता था। सारे लोग नॉर्मल थे वहाँ पे। हर कोई ये बोलता कि एक पीक के लिए जाते थे तो हर कोई मुझे ये बोलता कि अरुणिमा तुम धीरे धीरे आओ। मेरे दिमाग में हर बार यही बात चलती थी कि क्या है, मैंने एवरेस्ट का प्लान किया, मैं इनके बराबर भी नहीं चल पा रही हूँ। खुद से संकल्प लिया कि कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इनसे पहले जाऊंगी। और आपको शायद यकीन ना हो, आने वाले 8 महीने बाद पूरा का पूरा वेट उठा के बेस कैंप से साथ निकलते और टॉप पे पहले पहुंचते। ऐसे करके देखते थे कि अरे ये लोग तो पीछे। खुशी होती थी, उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी तब होना शुरू हुआ जब वो सारे लोग आके मुझसे ये पूछते, मैडम खाते क्या हो, बता दो, पैर नहीं है फिर भी कैसे चलते हो। उसके बाद पूरा मुझे स्पॉन्सरशिप मिला। मैं जब एवरेस्ट के लिए गई, मेरे लिए सबसे बड़ा एवरेस्ट की जर्नी में मेरे सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि दूसरे को समझा पाना। मैं नहीं समझा पाती कि भाई मैं कर सकती हूँ। जब मैं एवरेस्ट के लिए गई, शेरपा होता है, शेरपा को जब ये बात पता चला कि मेरा प्रोस्थेटिक लेग है, आर्टिफिशियल लेग है, दूसरे में रॉड, बोला नहीं ले जा सकता, इसकी वजह से तो मेरी भी जान जाएगी। मैडम ने, हमने सबने कन्विंस किया किसी तरीके से। मैं वाकई में जो टीवी में हम और उसमें फोटोज़ में देखते हैं ब्लू और ग्रीन आइस, हिला देने वाला होता, जितना सुंदर दिखता उतना ही हिला देने वाला होता। जब मैं हमारे ग्रुप में 6 लोग थे, रॉकी एरिया तक मैं सबसे पहले थी, लेकिन जैसे ही मैं ग्रीन और ब्लू आइस में गई, मेरा आर्टिफिशियल लेग स्लिप कर जाता था। फ्रंट पॉइंटिंग से, जब मैं फ्रंट क्रैम्पोन से फ्रंट पॉइंटिंग मारती थी, लेफ्ट से पेन होता था तब भी करते, लेकिन आर्टिफिशियल जैसे फ्रंट पॉइंटिंग मूव हो जाता, मेरा पैर ही मूव हो जाता था। शेरपा मुझे बोला नहीं हो सकता अरुणिमा, ज़बरदस्ती मत करो। मैंने कहा कुछ नहीं, ये मेरा पैर है, मैं जानती हूँ कैसे चलेगा। फाइनली 1, 2 बार, 3 बार करने, 4 बार, 5 बार होल्ड हो जाता था। आइस थोड़ा टूट के निकलता था तो मैं वहाँ पैर रख के जाती थी। कैंप 3 तक ठीक था, प्रॉपर एक्लिमेटाइज किया अपने आप। कैंप 3 तक जनरली गए। बात जब कैंप 3 के ऊपर की होती है, साउथ कोल समिट, अच्छे माउंटेनियर, अच्छे दिलेर के हौसले धरे के धरे तब रह जाते हैं जब अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देखता है। और दिमाग में बात, जब जिसको डिसीजन मेकिंग, और जब दिमाग में बातें जब ये आने लगती हैं कि अरे जिस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं उसी चीज़ के लिए आदमी मर रहा है, इसी चीज़ के लोग लिए मर चुके हैं। रात में क्लाइंबिंग, ज़्यादा से ज़्यादा माउंटेनिंग रात में की जाती है क्योंकि वेदर शांत होता है। जब मैं रात में निकली साउथ कोल से, कैंप 4 से, मेरी हेडलाइट जिधर ही हेडलाइट जा रही थी उधर ही डेड बॉडीज़ मुझे नज़र आ रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। इतना ही नहीं, मैं जिस रोप में थी उसी रोप में जब मैं आगे जा रही हूं और एक बांग्लादेशी, उनका हाथ हल्का हल्का ऐसे हिल रहा, मुंह से आवाज़ आ रही थी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मुझे कितना डर लग रहा था। बार बार ये बार बार मन में आता, इसका ऑक्सीजन ख़त्म हुआ है, ये मर चुका है लास्ट सिचुएशन में, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें। उसके बाद मैंने 10 से 15 मिनट सिर्फ मैं वहाँ खड़ी रही। मैंने सिर्फ इतना बोला कि अगर आप सभी में से सभी ने एवरेस्ट सबमिट कर लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं सबमिट किया है मैं सबके लिए एवरेस्ट सबमिट करूँगी और जिंदा वापस जाऊँगी। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हमारी बॉडी उसी तरीके से जनरेट करना शुरू करती है। मैंने डेड बॉडी, क्योंकि जा ही नहीं सकते थे किनारे से, उसी रोप में वो एंकर है, डेड बॉडी को लांगी और लांग के जाना शुरू किया। हिलेरी स्टेप साउथ समिट के करीब जब मैं खुद पहुंची, मेरे शेरपा ने एक जोर से झटका मुझे दिया कि अरुणिमा वापस चलो, तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। हिलेरी स्टेप के बाद एवरेस्ट समिट है, थोड़ा चलने के बाद एवरेस्ट समिट है। अगर कोई आपसे ये बोले आप अपने टारगेट के इतने करीब होगा तुम्हारा, मैंने कहा नहीं, ये आप जिंदगी में गोल्ड चांस बार बार नहीं आते, लाइफ में कभी कभी आता है, या आपके ऊपर आता, आप उसको पकड़ के रखते हो या फिर छोड़ देते हो। मैं अपना गोल्ड चांस कभी नहीं, क्योंकि मैं जानती थी मुझे स्पॉन्सरशिप बहुत मुश्किल से मिला। एक बार अगर मैं छोड़ देती दोबारा मुझे कभी नहीं मिलता। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। मेरा फाइनली मुझे बछेंद्री मैम ने भी एक बार बात समझाई थी, मेरी माँ ने मुझे एक बार बताया था कि लाइफ में कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है जब सिर्फ आप अकेले होते हो, डिसीजन सिर्फ आपको लेना होता है। जहाँ पे भी होना, खड़े होकर हल्का सा पीछे मुड़कर देखना और ये सोचना कि आप एक एक कदम चल के यहाँ तक पहुँचे हो। सिर्फ अपना एक कदम आगे बढ़ाना, तुम देखना कुछ देर बाद तुम टॉप पे होगी। मेरे दिमाग में उनकी बातें वीडियो की तरह चल रही थी और सिर्फ एवरेस्ट का टॉप चल रहा था।
मैंने शेरपा को पहले कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई चल, कुछ नहीं होगा भाई चल। फाइनली जब वो नहीं माना, मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, डिसीजन लिया कि नहीं, जाना ही जाना है। आगे बढ़े। करीब 1 से 1.5 घंटे बाद मैं टॉप पे थी। और इतना ही नहीं, आज भी मैं जितनी बार बोलती हूँ उतनी बार मैं महसूस करती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा दोनों हाथ ऊपर करके जोर जोर चिल्लाने का मन कर रहा, कितनी जोर से चिल्लाऊं, इतनी जोर से चिल्लाऊं कि सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूं। उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते हैं, लड़की, दूसरे विकलांग, तीसरे मिडिल क्लास में, जो लोग एक बार हार के फिर दोबारा लड़ना नहीं चाहते, जो लोग हारने के बाद सोचते हैं कि हम दोबारा कुछ कर नहीं सकते, उन लोगों को मैं चिल्ला चिल्ला के टॉप से बताना चाहती थी कि नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो। सिर्फ एक सोच की विकलांगता, हैंडीकैप आदमी यहाँ से होता है, यहाँ से नहीं। अगर यहाँ से जो आदमी विकलांग है तो नॉर्मल आदमी भी विकलांग है, जो अगर यहाँ से विकलांग है। चिल्ला चिल्ला के मैं बताना चाहती थी। मैंने शेरपा से कहा कि आप एक फ़ोटो खींच लो, क्योंकि सारे लोग फोटो, अपना नेशनल फ्लैग का जो